मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, जी, count be made. जी, हाउस इज इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन आवर में अभी 2 मिनट रहते हैं तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चंगेज अहमद खान, नॉट प्रेजेंट। हाँ, ये मिस आलिया कामरान,
सर बहुत मेहरबानी सर। सर क्वेश्चन नंबर है 58। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछे। जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है सर, जो मुझे यहाँ पे फिगर बताई गई थी कि जिन अद्वियात में एरर पाया गया है उनकी तादाद है सर 52,025। और मुझे इस पूरे सवाल के जवाब में जो मैं जानना चाह रही थी कि हालिया वक्तों के दौरान, मतलब 2 साल का पीरियड या 3 साल का पीरियड सर, उस दौरान जो एरर आया अद्वियात में, ज़रा वो अगर फिगर बता दी जाती तो उस पर मेहरबानी होती। सर जिन्होंने वायलेशन की है, जो वायलेटर्स थे, उनको क्या सजाएं हुई है? क्योंकि लाइसेंस मनसूख कर देना कोई इसका हल नहीं है, वो दोबारा अपनी घर वालों के नाम से लाइसेंस के साथ मार्केट में आ जाते हैं। और सर जो इतना एरर आया सिस्टम के अंदर, तो अब तक हुकूमत ने उस एरर को दूर करने के लिए क्या इकदाम किए हैं ताकि अद्वियात की जो है वो सही चीज़ पहुँच सके लोगों के पास? और दूसरा सर, इस एरर को पब्लिक में इस अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि ये अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी है, ये अद्वियात सही नहीं है, उसके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? ठीक है, जनाब नेल्सन अजीम साहब। जनाब ये बहुत, स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया है। लेकिन बात ये है कि एरर जब होता है तो उसके लिए एक कमेटी सारे इंस्टीट्यूशंस में अपनी अपनी बनाई है, वो रिपोर्ट करते हैं। वो हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं अपने प्रोविंस में, और प्रोविंस से फिर जो है वो सेंटर में आती है और यहाँ से फिर WHO को भेजते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये किया है कि हर फार्मेसी पर एक फार्मासिस्ट हो, हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हो। सो उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए फार्मासिस्ट को मुकर्रर किया है, उसकी ज़रूरत को मुकर्रर किया है। दूसरा ये है कि इसकी जो है कंपेन कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि ये दवाइयाँ इतनी देर खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन क्योंकि पब्लिक है, एक दफ़ा डॉक्टर लिख देता है तो वो सारी उम्र वही खाते रहते हैं और उसकी इम्यूनिटी हो जाती है। जी शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। ये announcement है। May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the students and faculty members from Beacon House School System VA Kent are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Citation. May I invite the attention of the House? I am pleased to announce the presence of a group of National Assembly interns in the visitors gallery. Please join me in extending a warm welcome to these interns and in appreciating their enthusiasm and dedication to learning and serving the democratic ideals of the nation. Leave applications. Sayyid Javed Ali Shah Jilani has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Nazir Ahmad Bugio has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Nosheen Iftikhar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Raja Kamarul Islam has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Nawab Muhammad Yusuf Talpur has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Asad Kaisar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Abdul Qadir Patel has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Khwaja Izharul Hassan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Ahmad Raza Manika has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Wasim Qadir has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Malik Muhammad Amir Dogar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Nawaz Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Sayyid Hussain Tariq has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Zaib Jafar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Anwar Al-Haq Chaudhry has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Ms. Sabeen Ghauri has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Zulfikar Ali Bhatti has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. We have renowned wrestler Mr. Attar Zahid.
He has defeated Indian wrestler in Shingam, Dubai, in Nepal. We welcome him in official gallery. जी, item number 3, Ms. Sharmila Faruqi, साहिबा, पढ़े calling सर थैंक यू डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैं कॉलिंग अटेंशन लेने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रही हूँ, इफ़ यू कुड बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स। सर मेरी गुजारिश ये है कि क्वेश्चन आवर के दौरान अगर कोरम पॉइंट आउट हो जाता है और आप हाउस एडजर्न कर, कॉलिंग अटेंशन पढ़े ना, सर इसको छोड़े प्लीज नहीं आप। सर ये अहम बात है सर, तो अगर वो हाउस एडजर्न होता है फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, उसको क्वेश्चन आवर में इंक्लूड ना किया जाए, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। सर ये सवालात हम इंतहाई मेहनत से डालते हैं और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के सवाल होते हैं। अगर हाउस एडजर्न हो जाता है आधे घंटे 40 मिनट के लिए, फिर हाउस इन ऑर्डर आता है, फिर हाउस शुरू होता है, ये हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आगे आप बेहतर समझ सकते हैं। लेट मी टेक अप द कॉलिंग अटेंशन सर। Sir, I invite attention of the Minister for Commerce to a matter of urgent public importance regarding serious disruptions in the rice exports from Pakistan to European countries resulting in loss to the national exchequer, causing grave concern amongst the public. जी, जुल्फकार भट्टी साहब। जनाब स्पीकर साहब, मेरे फाजिल मेंबर ने जो डिस्ट्रप्शन के बारे में बात की है बिल्कुल ठीक बात है। हमारा जो टोटल शिपमेंट्स थी वो इन 1000 में थी यूरोपीय यूनियन को। लास्ट ईयर 61 इंटरसेप्शंस हुई और इस साल 105 इंटरसेप्शंस हुई। जो पाकिस्तान है उसका ग्लोबली हम 11% हमारा शेयर है राइस एक्सपोर्ट में और 50% हमारी टोटल एग्रो का, और टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 13% हमारा राइस का है। और हमारे जो कंपटीटर हैं वो इंडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है। ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं, ये एक तो इसकी वजह ये है कि 2023 में इंडिया ने अपने डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल पे मोदी ने अपने इलेक्शंस के दौरान इस पे अपना राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी और वो अब दोबारा उन्होंने पाबंदी उठा दी क्योंकि जो हमारा मेन कंपटीटर है वो इंडिया है और पूरे वर्ल्ड में वो हमको कम्पीट कर रहा है। दूसरा उस वजह से वो जो हमें एक बेनिफिट मिला था मार्केट में, हमें वो बेनिफिट मार्केट में मिला था कि इंडिया की पाबंदी की वजह से हमें ग्लोबली हमें फ़ायदा हुआ और हमारा जो राइस है वो हमारे बायर ज़्यादा बने। इसके बाद दूसरा जो इशू ज़्यादा बना वो ये है कि डीपीपी, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं, उनके जो सर्टिफिकेशन और उनके जो एसपीएस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड थे उसमें मसाइल आए और यूरोपीय यूनियन में जो हमारे 105 शिप्स जो हैं उनमें से डिटेक्ट हुआ, किसी में हमारा डिटेक्ट होगी पेस्टिसाइड की जो स्टैंडर्ड था वो ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह आ गए, इसी तरीके सैनिटेशन के इश्यूज आ गए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसका राइस की एक्सपोर्ट में हमारा एक अब भी राइस है, लेकिन हमें क्योंकि इन फ्यूचर हमें इस पे बिल्कुल अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को। इसमें हमने एक तो ये काम किया कि जब इंडिया जो है वो दोबारा मार्केट में आया तो उन्होंने जो चावल था वो उन्होंने उसको राइस को उन्होंने बहुत सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिया। हमने इस पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो थी एमईपी उसको भी हमने कम किया। हमने पिछले साल इसको भी कम किया ताकि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो भी compete कर सके। दूसरा, हमने फाइटो सैनिटरी इंस्पेक्शंस और सर्टिफिकेशन को स्ट्रेंथन किया। हमने इसमें एक्सपोर्ट कंप्लायंस को भी इम्प्रूव किया
और इसके अलावा हमने अवेयरनेस जो है एक्सपोर्टर्स, उनमें उसके स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, यूरोपीय यूनियन के जो स्टैंडर्ड हैं, उनमें उनको अवेयरनेस दी। हमने इसमें एक ये किया, जो डीपीपी था वो टेक्निकली और उसके जो पूरा एक स्टैंडर्ड नहीं थे, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इसमें गफलत की थी। और उसमें हमारे 17 इंस्पेक्टर जो है उनको उन्होंने FIA ने मुअत्तल किया और उन पर FIRएं हुई। और इसके बाद एक और मॉडल जो है वो इन प्रोसेस है, जिसमें वो एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड की लैब्स और स्टैंडर्ड का एक पूरा मैकेनिज़्म जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने DPP की रिस्ट्रक्चरिंग को भी इसमें हमने मद्देनज़र रखा। अब इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा कंपटीशन है, या हम अपने फ़िलहाल तो हम अपना जो राइस है इसकी एक्सपोर्ट में हमारा डेफिसिट नहीं है, लेकिन हम उस जो साबका स्टैंडर्ड है या अपनी साबका मार्केट को मेंटेन करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जो हुकूमत अब स्टेप्स उठा रही है वो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पूरा करेंगे। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। सर देखिए, 2024 के अंदर पाकिस्तान ने 6 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो एक्सपोर्ट किया है, जिसकी फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास $4 बिलियन आए हैं। और हुकूमत का जो तखमीना है, जो कोशिश है, वो ये है कि 2030 तक उसको $10 बिलियन तक ले जाएं। अब इशू ये आ रहा है कि जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर रही गवर्नमेंट। उनके साथ इशू ये हो रहा है कि अब इंडिया ने क्योंकि राइस एक्सपोर्ट पे से बैन हटा दिया है, दैट इज गोइंग टू बी फियर्स कंपटीशन। क्या ये बता सकते हैं कि कोई मज़ीद अनटैप्ड मार्केट्स को इन्होंने टच किया है, या जो एक्सपोर्टर्स को साइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन की इशुएंस के अंदर ताख़ीर मिलती है उसके हवाले से इन्होंने कोई इक़दाम उठाए हैं, या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उस पर कंप्लायंस को यकीनी बनाने के लिए कोई इक़दाम उठाएं? ये तो जेनरिक से सारे जवाब आ रहे हैं ना। वी नीड रिजल्ट्स, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है राइस एक्सपोर्ट से। और अगर यही हमारी मार्केट चली गई, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इज़ ऑल्सो एट स्टेक और पाकिस्तान के चावल की एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो ऑन स्टेक। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब इतने मासूम से, अब मैं इनसे क्या सवाल पूछूं, अगर ये बता दें हमें कि हाउ इज़ द गवर्नमेंट फैसिलिटेटिंग द राइस एक्सपोर्टर्स। शुक्रिया। जुल्फ़कार भट्टी साहब। मेरी मासूमियत तो अपनी जगह पे है, मैं यकीनन मासूम भी हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा एक्सपोर्टर था, इसी एक्सपोर्टर ने जो DPP को पैसे दे के वो इसका SPS को इन्होंने, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन में हमारी बदनामी हुई। हमने रीप के साथ एक मुलाकात की है। हम एक्सपोर्टर्स को पूरी सहूलतें देने को तैयार हैं और हमारी ये अपनी पूरी कोशिश है, लेकिन हम ये नहीं कभी कर सकते कि हम जो DPP पैसे लेके वो गलत सर्टिफिकेट उन्होंने दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। यूरोपीय यूनियन में हम ब्लैक में जाने को तैयार हो गए, पाकिस्तान का इतनी बदनामी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, मेरा फाजिल मेंबर ये बताए कि कौन सी हमने एक्सपोर्टर पे कज़न लगाई। अगर उन पे उन्होंने गलत काम किया, FIA में उनके खिलाफ FIR रही, उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, उस ओवर रिएक्शन की वजह से DPP ने ओवर रिएक्ट किया कि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम तो DPP के मुतबादल इसका एक मॉडल ला रहे हैं कि ताकि वो डिजिटली भी हो और उसके पूरा एक सिस्टम जो है उसका उसमें रैपिडनेस भी आए और उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो। तो इसका हम बिल्कुल इस पर काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपने एक्सपोर्टर को किसी किस्म का मायूस किया है। शुक्रिया। मिस्टर खुर्शीद अहमद जुनेजो टू आस्क वन क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने जो जवाब दिए हैं सर, वो अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब है। अब राइस जो एक्सपोर्ट होती है
वो तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल में उसमें नंबर 2 है, मगर इसको अभी तक इंडस्ट्रियल का दर्जा नहीं दिया गया है। और जबकि वज़र मुबादला जो है तकरीबन 4 बिलियन जो है लास्ट ईयर जो है वो कमाया था डॉलर्स में, और तकरीबन जो है 9 मिलियन टन्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसमें से 3 मिलियन टन्स जो है वो पंजाब के होते हैं, 6 मिलियन टन्स जो है होते हैं वो सिंध के होते हैं, जिसमें बासमती जो है वो पंजाब करता है, सिंध जो है एरी 6, एरी 9, एरी 8, और जो चाइना जो है वो करता है। ये शिपमेंट एक गई थी इटली के अंदर। अब वो शिपमेंट जब गई, वो पंजाब से गई, बासमती की वो एक शिपमेंट थी, और उसमें जो है इंटरसेप्शन वहाँ पर हुआ। अब इंटरसेप्शन जो है वो होता रहता है, इट्स द नॉर्मल थिंग। अब वो चाइना का भी होता है, इंडिया का भी होता है, थाईलैंड का भी होता है, बर्मा का भी होता है, ये होता रहता है। मगर वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर साहब जो थे, उन्होंने यहाँ पर आके शिकायत कर दी पाकिस्तान में गवर्नमेंट में कि वहाँ पर जो है इसमें पेस्टिसाइड्स और ये इस्तेमाल होता है। अब वो पेस्टिसाइड जो भी है ज़ाहिर है कि वो जो है ग्रोवर्स इस्तेमाल करता है, जो अमूमन एक्सपोर्टर्स होता है वो तो सिर्फ इसको हस्किंग करके और इसकी जो है पॉलिशिंग करके वो एक्सपोर्ट करता है। अब इन लोगों ने कहा कि R&D में, अब R&D में इनके पास जो है तकरीबन 12 बिलियंस पड़े हुए हैं। अब वो 12 बिलियंस अभी तक वो लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं। अब जो हमारा एक्सपोर्ट होता है चावल, उसमें से 0.25 जो है डॉलर्स जो होते हैं वो उसमें जमा होते हैं अपना ये इसमें E&D में। अब जो प्लांट प्रोटेक्शन की जो बात की हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने, अब उसमें उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, वो कंट्रोल कोई चीज़ नहीं है। पैसे हैं मगर उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। अब वो सिस्टम तो इनको पैदा करना चाहिए ना। जब ये पैदा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है ये चीज़ें जो आगे नहीं बढ़ेगी। और इधर को कुछ ज़ाहिर है जब तक आप ग्रोवर्स तक नहीं जाएंगे, हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है, 37 मिलियन हेक्टर टन जो हमारी लैंड जो है वो इरिगेटेड होती है, मगर उसमें जो है कभी वहाँ पर एक्सपर्ट गए जाके उनको बताया कि भाई कितना आप लोगों को ये जो है DAP देना चाहिए, यूरिया देना चाहिए, सब 2 नंबर की आ रही है। अब ये सब चीज़ें जो है जब आपके पास ये जो चावल है आप अगर सब मुंह में रखेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जहर लगेगा। अब वो आप हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें ये मसले तो आएंगे ना, उस पर आपको यहाँ पर काम करना चाहिए, न कि हम लोग जो है बाहर पे काम करें। ठीक है जी। जुल्फ़कार भट्टी साहब। मेरे दोस्त ने जो बात की है बिल्कुल मैं इस पे एग्री हूँ। देखें, जो राइस की प्रोडक्शन है उसको में हमने क्वालिटी और स्टैंडर्ड को किसने मेंटेन करना है। देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो ना तो वो जाके सूबों में राइस को ग्रो करा सकती है, और दूसरा DPP जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर नहीं है। वो आपकी मिनिस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के अंडर है, हमारा जो फेडरल है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि दूसरी चीज़ ये है कि सूबे जो हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों को भी ये पेस्टिसाइड के बगैर राइस मिलने चाहिए कि नहीं, जैसे मेरे फाजिल मेंबर ने कहा है। मुझे बताएं कि प्रोविंसेस जो हैं उनके साथ कि हम कोऑपरेशन में हैं, लेकिन प्रोविंसेस इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि सिंध में क्या कोई DPP या सर्टिफिकेशन या कोई ऐसा निज़ाम है। हम तो DPP, अगर उसने DPP ने काम नहीं किया तो उस पर हम उसके मुतबादल जो है एक पूरा सिस्टम जो है वो खड़ा कर रहे हैं, ताकि उनकी लैब्स भी हों, स्टाफ शॉर्टेज भी पूरी हो, टेक्निकल भी हो, डिजिटल भी हो, रैपिड भी हो, और फार्म से लेके उसकी ग्रो करने से लेके मार्केटिंग तक, उसकी शिपिंग तक, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। जो हमारी ड्यूटी है हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, प्रोविंसेस भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, इन्हें भी चाहिए कि वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करें। पाकिस्तान के लोगों को भी जो है वो पेस्टिसाइड से फ्री राइस चाहिए, सिर्फ एक्सपोर्ट का नहीं चाहिए। मुझे कोई बता दे कि वहाँ पे अपने प्रोविंसेस क्या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं अभी जी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब टू आस्क वन क्वेश्चन।
इख्तियार बेग साहब का माइक खोलें। जी हेलो, यस, थैंक यू सो मच। सर, मेरा यही सवाल है, सवाल नंबर 3 तो शर्मिला साहिबा ने और मेरे साथी जुनेजो साहब ने पूछा है, लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम सवालों से और जवाब के मुख्तलिफ चीज़ है जो मेरा इसमें कंसर्न है। कंसर्न ये है कि हमारे यहाँ मुसलसल क्रॉप एग्रीकल्चर की शॉर्टफॉल आ रही हैं। कॉटन की क्रॉप जो 13 मिलियन बेल पे पहुंच के 6 मिलियन बेल भी नहीं हो पा रही है इस साल, जबकि 2 साल पहले 13 मिलियन थी। राइस की भी इस बार क्रॉप अफेक्टेड है हमारी। सवाल यह है कि राइस की जो एक्सपोर्ट हो गई 2023 में और 4 बिलियन हमने कमा लिए, उसमें इंडिया को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बैंड लगाया था। उनके यहाँ क्रॉप शॉर्टफॉल थी तो वो नहीं चाहते थे कि ये एक्सपोर्ट हो और हमने वो इनकैश किया। मसला जो क्रॉप हमारी कोलैप्स हो रही है या कम हो रही है, उसकी वजह कोई और चीज़ है, वो देखिए, वो नज़र नहीं आ रही हमारी मैनेजमेंट को। वजह है एडल्ट्रेटेड सीड्स, जाली बीज जो हैं, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। ये खुला बिजनेस चल रहा है अरबों रुपए का, जिसमें जाली बीज, जाली फर्टिलाइजर्स और जाली पेस्टिसाइड। सर, मुझे सवाल सिर्फ कर लेने दें। सवाल ये है कि किसी स्टेज पे कोई चेक इन नहीं होती। मासूम फार्मर खरीदता है इस उम्मीद से कि वो क्रॉप आएगी और फिर बाद में उसकी यील्ड भी तबाह हो जाती है, क्वालिटी भी तबाह हो जाती है। मेरी आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी मॉनिटरिंग मैनेजमेंट बनाई जाए एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सज़ा दें। आप फाइन करते हैं, वो आदमी वो पे करके दोबारा आ जाता है। ऐसे आदमी को सख्त सजाएं हो जो जाली बीज, ठीक है, जाली अद्वियात। आ गया सवाल, आ गया आपका। जी भट्टी साहब। देखें, मैं डॉक्टर साहब ने जो बातें की बिल्कुल 100% सही हैं जनाब स्पीकर साहब। हम भी ये चाह रहे हैं कि जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अंडर, ये जो इन्होंने जिक्र किया है, इन्होंने पेस्टिसाइड का जिक्र किया है, इन्होंने सीड का जिक्र किया है, दूसरी चीज़ों का जिक्र किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर नहीं आते। तो मैं जनाब स्पीकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एक ऐसी कमेटी बना दें जिसमें, क्योंकि जो कॉमर्स है वो एक दुकानदार है, हम शॉप से हमारी, हमने तो जो चीज़ हमें मिलनी है वो हमने बेचनी है। उसमें बेशक वो एग्रीकल्चर से आए, एग्रो आए, नॉन एग्रो आए, टेक्सटाइल आए, आप एक कमेटी बना दें, क्योंकि ये इसमें सारे जो स्टेक होल्डर हैं, प्रोविंसेस भी हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च भी है, इंडस्ट्री भी है, ये सारे इसमें एक बैठे और इस कमेटी में, और इसको वो हम तो अपनी कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड को मेंटेन करना वो अकेला कॉमर्स के बस का बात नहीं है। जी रमेश लाल साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मेरी गुजारिश हमारे ऑनरेबल भट्टी साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी भट्टी साहब से, वो हमारा भाई है, पर बात ये है, हमारे एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जो खास करके पंजाब हो या सिंध हो, राइस और गंदम का है, और राइस का है दूसरे तीसरे साल से पॉलिसी न होने की वजह से जनाब स्पीकर साहब, इतना एग्रीकल्चर जो ज़मींदार हैं और दूसरा राइस मिलर हैं, एक्सपोर्ट जो जैसे मेरे भाई ने कहा अलर्ट कहते हैं, अलर्ट का ये हाल है, हमारा है 72, चाइना का पता नहीं कंफर्म नहीं है, इंडिया का 328 है। तो मुख्तलिफ, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको मुख्तलिफ हमारी FIA हो या दूसरी जो है डिपार्टमेंट, खास करके मैं कहूँगा कॉमर्स मिनिस्ट्री की पॉलिसी होनी चाहिए, कम से कम एग्रीकल्चर को। अभी देखें न, दूसरे साल से हम राइस मिलर या जो ज़मींदार हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है।
जो रेट 3000 रुपया था वो अभी 2500 रुपया, 500 रुपया फी मन पे नुकसान। काश्तकार भी तबाह हो रहा है और जो लैंडलॉर्ड है जमींदार वो भी तबाह हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा हमारे ऑनरेबल पार्लियामानी सेक्रेटरी ने कहा जो है डीपीपी, बदकिस्मती ये है डीपीपी को पाकिस्तान में वो भत्ताखोर एक डिपार्टमेंट है, तो पाकिस्तान वाले उनको नहीं मान रहे हैं तो यूरोप वाले कहां से मानेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, इधर पीटीआई के दौर में पीआईए को मिनिस्टर सरवर खान ने जो बदनाम किया था। सवाल करें ना इसमें। जो कॉलिंग अटेंशन है उसको पीआईए का क्या वास्ता, आप एक सवाल करें। जैसे पीआई को बदनाम किया गया था ऐसे डीपीपी डिपार्टमेंट भी ऐसा है। मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर साहब, गवर्नमेंट पॉलिसी दे, खास करके एक्सपोर्टरों को और राइस मिलरों को जो बाहर रेट सही मिले तो कम से कम एग्रीकल्चर वो धान करेंगे, नहीं तो इसकी वजह से, पॉलिसी की वजह से आइंदा कोई राइस और गंदम जो है ना काश्तकार ही नहीं करेगा, ये मुल्क के लिए नुकसान करे। ठीक है, शुक्रिया। भट्टी साहब। देखें स्पीकर साहब, मेरे फाजिल मेंबर ने फिर दोबारा वही क्वेश्चंस को अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को रेज किया है। इसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं। मैंने ये अर्ज़ किया है कि डीपीपी की रिप्लेसमेंट पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्विक एक्शन लिया है और जो लोग जो उसमें ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, पर्चे भी हुए और उसका अल्टरनेट अब वो बहुत जल्दी अल्टरनेट इन प्रोसेस में है और उसको बिल्कुल जदीद खतूत पे उसको मैंने पहले अर्ज़ किया है, डिजिटली भी, मशीनरी के लिहाज से भी, स्टाफ के लिहाज से उसको किया जा रहा है। बाकी जो एक्सपोर्टर जिसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ तल्लुक़ है, मैं ये ऑफ़र करता हूं कि मेरे फाजिल मेंबर मुझे कोई एक्सपोर्टर, हमने रीप के साथ भी मीटिंग की है, को वो अपना कोई एक्सपोर्टर कोई मेरे सामने बिठा दें, मैं इनको बिठा देता हूं, वो उनके जो ग्रिमसेस हैं मैं दूर करने को तैयार हूँ। शुक्रिया। ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है इसको हम रेफ़र करते हैं कॉमर्स कमेटी को कि वो उस कमेटी को ही भेजते हैं, कॉमर्स कमेटी को। जी शुक्रिया। ये मूसा गिलानी साहब, वन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी मूसा गिलानी साहब का माइक खोलें। जी थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस मैं 2-3 से क्योंकि क्वेश्चन आवर चल रहे थे तो मैं बड़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी इसी राइस एक्सपोर्टर्स के लिए ही लेना चाह रहा था। इस पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर जो मुतलका मिनिस्टर हैं उनमें राना तनवीर साहब सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं फूड प्रोटेक्शन, नेशनल फूड सिक्योरिटी के, उनका होना भी ज़रूरी था, लेकिन उन तक ये पैगाम पहुँच जाएगा। देखिए हमारे मुल्क, हम सब टीवी पर और यहाँ पर आकर ये बात करते हैं कि हमने अपनी सियासत ख़त्म कर दी इस मुल्क को बचाने के लिए। हमने मुल्क को बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचाना है, हमने सियासत तबाह कर दी, हमने सियासत की कुर्बानी दे दी, चाहे वो नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, हम सब ये कहते हैं हम एक दूसरे के साथ मिल के बैठ गए और हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी मुल्क बचाने के लिए। मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए। उन्होंने उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोग्राम लगाया जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को टर्न अराउंड करेंगे। हम टीवी शोज पर बैठकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर पार्लियामेंट में आते हैं, जाते हैं, हर जगह पर डिफेंड कर रहे होते हैं कि हमने इकॉनमी बचा रहे हैं, हम जी इकॉनमी को टर्न अराउंड कर रहे हैं, जिसका उन्होंने एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान से में सरमायाकारी को फरोग देना था, या इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, जो पिछले 10-10 सालों से टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी फ्लाइट ऑफ एक्सपोर्टर्स है पाकिस्तान से, क्या हम उनको वहां से भगाना चाहते हैं? पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब ने बताया डीपीपी का, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो फेडरल महकमा है, वो किसी प्रोविंशियल महकमा नहीं है, और वो एक एक्स्ट्रा लेयर है एक्सपोर्टर्स पर लगाने के लिए, एक बत्था लेने के लिए कि भाई ये सर्टिफिकेशन करा लो। प्लांट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की जो टोटल उनकी स्ट्रेंथ 18 लोग हैं, इंडिया में जो प्लांट प्रोटेक्शन है उनकी 1800 लोग हैं बैठे हैं वहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर है, और उस डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की जो सर्टिफिकेशन है वो पाकिस्तान में कोई नहीं मानता।
तो बाहर के मुल्कों में कौन मानेगा उसको? आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन में जो हमारी राइस है वो $4.2 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, 190,000 मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट थी विद ओनली 72 रैपिड अलर्ट्स। इंडिया की 1,90,000 मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट है विद 328 रैपिड अलर्ट्स। तो हम पाकिस्तान जो है वो कंप्लायंस में भी नंबर 1 है, क्वांटिटी में भी नंबर 1 है। और आज FIA, चाहे वो मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी है, वो हरास कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स को। क्या हम एक्सपोर्टर्स को भी हरास करेंगे? ये हमारी जो हम हर जगह एक तरह PIA बनाना चाहते हैं कि यहां पर बैठकर हम ये कहें कि जी हमारे एक्सपोर्टर्स ने DPP के साथ मिलकर 2 नंबरी की है तो एक्सपोर्ट बंद हो रही है। यूरोपियन यूनियन बैन नहीं लगाता, यूरोपियन यूनियन सिर्फ रैपिड अलर्ट दिखा के टेस्टिंग का जो टेस्टिंग की जो परसेंटेज है वो बढ़ा देता है। पाकिस्तान की आज भी सबसे कम परसेंटेज है टेस्टिंग की, वो टेस्टिंग बढ़ाता है। हम इस एक नॉर्मल प्रोसीजर को इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं और उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि हम बंदे अरेस्ट कर रहे हैं। और भाई जिनको अरेस्ट करना है उनको अरेस्ट करो। साहब आपका पॉइंट आ गया जी, मेरी गुजारिश जी, शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। मामला जी कमेटी में रेफर कर दिया गया है, तो वी विल रिक्वेस्ट कि गिलानी साहब को भी मीटिंग में बुला लिया जाए। आफरीदी साहब का माइक ऑन कीजिए जी। जी स्पीकर साहब, एक तो नहीं जनाब, आपने कोरम की बात की। आफरीदी साहब आप कोरम की बात नहीं तकरीर ना करें ना, आपने कोरम पॉइंट आउट किया। ये आपस में अपनी मफाद। जी जी, आपने कोरम पॉइंट आउट करना है तो माइक से करें। जो आपने बात की स्पीकर साहब, चलें, काउंट बी मेड जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ये नमाज ब्रेक फॉर 15 मिनट्स जी